अस्सलामु अलैकुम, आदाब। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। 17 सितंबर को यौम-ए-कौमी इत्तेहाद के दिन के तौर पर मनाने तेलंगाना काबीना का फैसला। 6 रोज़ा जश्न तक़रीबात का भी हुआ ऐलान। रियासती गवर्नर तमिलिसाई का अचानक निम्स अस्पताल का दौरा। फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन की मुतासरा खवातीन से की मुलाकात। बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने सदर जमहूरिया की मदाखिलत जरूरी। जमात इस्लामी हिंद शोबे खवातीन ने लिखा मरमू को खत। और ज़ायरीन उम्रा सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट से आ जा सकते हैं। पूरे मुल्क में आज़ादाना नक़ल व हरकत की भी इजाज़त शामिल। वज़ारत हज व उम्रा का बयान। आइए अब चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। तेलंगाना रियासती काबीना ने हफ्ते के रोज़ मुनक़िदा एक मीटिंग में 17 सितंबर को यौम-ए-कौमी इत्तेहाद तेलंगाना के तौर पर मनाने का फैसला किया है। इस ज़िमन में 16 सितंबर तक 18 सितंबर यानी 3 रोज़ तक तेलंगाना भर में यौम-ए-कौमी इत्तेहाद की 6 रोज़ा तक़रीबात मुनक़्क़द की जाएगी। इस मौके पर 17 सितंबर को वज़ीर आला KCR बाग़-ए-आमा में कौमी परचम कुशाई अंजाम देंगे, जबकि तमाम अज़ला में भी परचम कुशाई की तक़रीबात होंगी, जिसमें वज़रा भी हिस्सा लेंगे। यौम-ए-कौमी इत्तेहाद के 6 रोज़ा तक़रीबात में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी हुकूमती सतह पर मुनक़्क़द किए जाएंगे। तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज शहर के निम्स अस्पताल का दौरा किया। फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन नाकाम हो जाने के बाद तेलंगाना में 4 खवातीन की मौत हो गई, जबकि कुछ खवातीन इन दिनों निम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। गवर्नर ने मुतासरा खवातीन और उनके रिश्तेदारों से मुलाकात करते हुए तफसीली बातचीत की। गवर्नर ने अस्पताल इंतज़ामिया को हिदायत दी है कि वो मरीजों को बेहतर इलाज की फराहमी यकीनी बनाएं। First of all, I came here to give moral support to the women because no fault of them they are suffering, that's all. And here, NIMS, they are very happy about the treatment of the doctors. And they need some, because some of them are demanding some financial assistance. And they want some help for to bring up the children also. This is the appeal from them. And I will also inform the government because the people are asking that, and within my limits, what all the help I could do, I will do for these patients. And the moral support, and some of the women are very pleased, very much pleased when they saw me, and the family members are little distressed. So it is natural. And now they have been saved, and I appeal, and my request is such incidences should not be repeated, and single day more targets. I don't know what is the problem, and the inquiry yet to be submitted, and the inquiry should be free and fair. And I am really, not only as a governor, as a doctor also I am concerned. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन रेवंत रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR पर तनकीद करते हुए दोनों रहनुमाओं को अवाम का मुजरिम बताया है। वज़ीर-ए-आज़म पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि किसानों की खुदकुशियां, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब के लिए मोदी अवाम के मुजरिम है, तो चीफ मिनिस्टर KCR भी बेशुमार झूठे वादों और अवाम को धोखा देने के मामले में मुजरिम है। అసలు ఆనాడు తెలంగాణలో సాయుధ రైతాంగ పోరాటం జరిగినప్పుడు ఇక్కడ బిడ్డలు తుపాకీ తూటాలకు బలైనప్పుడు రజాకర్ల దాష్టికాల మీద పోరాటాలు చేసినప్పుడు మీ పార్టీలు ఎక్కడున్నాయి? మీరు పుట్టనన్న పుట్టినరా అని నేను అడుగుతున్నా. ఇవాళ ఇక్కడున్న యువకులందరూ గుర్తు చేయదలుచుకున్నా. నేను భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే అంత పొడుగు ఇంత పొడుగు కాదు, అది ఎప్పటిదో కాదు. 1981లోనే పుట్టింది ఆ పార్టీ. భారతీయ జనతా పార్టీ పుట్టి 41 ఏళ్ళైతే ఇవాళ గొప్పలు చెప్పుకునే KCR పార్టీ పుట్టింది 2001లో. ఆ పార్టీకి ఉన్న వయసు 21 సంవత్సరాలు. ఒకంది 41 అయితే ఇంకొకంది 21. కానీ మన పార్టీ చరిత్ర ఎంత తెలుసా? 140 ఏళ్ళు. వాన్ తాతలు వాన్ ముత్తాతలు వాన్ తాతల తాతలు పుట్టకంటే ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ పుట్టింది. ఈ దేశ ప్రజలకు స్వతంత్రాన్ని ఇచ్చింది. ఈ తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని నిజాం ప్రభువుల నుంచి విముక్తి కలిగించింది. ఈ ప్రజలకు స్వేచ్ఛనిచ్చింది, స్వాతంత్రాన్ని ఇచ్చింది. అయినా ఆంధ్రప్రదేశ్లో విలీనమైతే
ఈ ప్రాంత ప్రజలకు అన్యాయం జరుగుతుందన్నప్పుడు మళ్ళీ త్యాగానికి పాల్పడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో పార్టీ చచ్చిపోయి కేంద్రంలో అధికారాన్ని కోల్పోయి తెలంగాణలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొంటున్న తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు అన్న సంగతి మరవద్దు. మనకు గొప్ప చరిత్ర ఉన్నది, మనకు పూర్వీకులు ఉన్నారు, మన తాతలు గొప్పలు, మన ముత్తాతలు గొప్పలు, మనం పోరాటం చేసిన వాళ్ళం, ప్రాణాలు ఇచ్చిన వాళ్ళం. ఈ దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన మహాత్మా గాంధీ గారు, ఇందిరాగాంధీ గారు, రాజీవ్ గాంధీ గారి వారసులం, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులం. 3 తరాలు ఈ దేశం కోసం రక్తం చిందించి ఈ దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన గాంధీ కుటుంబ వారసులం మనం. మన ముందల, మన కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల ముందల ఈ టీఆర్ఎస్ బీజేపీలు కాలు గోటికి సరిపోరని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా మన కార్యకర్తలకు గుర్తు చేయదలుచుకున్నాను. हैदराबाद के कुतुबुल्लापुर हल्के असम्बली निज़ामपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में आसरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम अमल में आई। मुकामी एमएलए विवेकानंद के हाथों 1002 आसरा पेंशन कार्ड्स मुस्तहक़ दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किए गए। एमएलए ने इस प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ज़्यादा बहबूदी काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिसकी मिसाल साबिक़ में नहीं मिलती। అనంతలక్ష్మి గారు వీరు ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్ అర్హురాలు. చాలా సంతోషం. ఈరోజు కేవలం నిజాంపేట్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కి మరి 1002 మందికి పెన్షన్లు వస్తామని అంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరి 10 లక్షల పెన్షన్లు మంజూరు చేసి 57 సంవత్సరాల పైచిన వారికి పెన్షన్లు ఇస్తామని చెప్పి మాట ఇచ్చి మాట నిలబెట్టుకున్న నాయకుడు కేసీఆర్ గారని చెప్పి సభాముఖంగా మనం చేస్తా ఉన్నాను. ఎంతో మంది దుష్ప్రచారం చేసిన, ఎంతో మంది మరి తప్పుదో పట్టించిన ప్రజలు ఎవరు కూడా దాన్ని నమ్మలేదు. ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు ఏదైనా మాట చెప్తే మాటపై నిలబడేటువంటి నాయకులు వాళ్ళు. చాలా పార్టీలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాయి, కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట్లాడుతూ ఉంటది, బీజేపీ పార్టీ మాట్లాడుతూ ఉంటది. ఒకటే ఒక ప్రశ్న అడగాలి మనం, అరే బాబు భారతదేశంలో 29 రాష్ట్రాల్లో మీరు అధికారంలో ఉన్నారు, ఏ రాష్ట్రంలోనైనా మీ బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రంలో అయినా సరే, కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రంలో అయినా సరే 2000 పెన్షన్ ఎక్కడ ఇస్తున్నారా అని దానికి సమాధానం చెప్పి రాజకీయాలు మాట్లాడని చెప్పి ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి నేను అందరికీ కోరుతా ఉన్నాను. गणेश उत्सव त्यौहार के मौके पर आदिलाबाद जिले एसपी की जानिब से पीस कमेटी की एक मीटिंग मुनक्कद की गई थी, जिसमें मजहबी रहनुमा जिम्मेदारान को तलब करके जिले में अमन की बरकरारी में ताउन की अपील की गई। जिले एसपी ने दोनों फरीकीन से दरख्वास्त की है कि वो जिले आदिलाबाद जो कि अमन का गहवारा है, इस रिवायत को बरकरार रखने में इंतजामिया का साथ दें। पुलिस की जानिब से गणेश उत्सव कमेटी को भी कुछ जरूरी हिदायतें दी गई। एंटायर म्यूनसिपालिटी एरिया में गणेश फेस्टिवल के बारे में पीस कमेटी मीटिंग हुआ। ये पीस कमेटी मीटिंग में पूरा 2 तरफ से पूरा ये बड़ा आदमी आया, पूरा सब काउंसिलर में आया, पूरा ये गणेश उत्सव कमेटी मीटिंग में आया। एंटायर दिस आदिलाबाद टाउन सब ऑल ये पुलिस ऑफिसर अटेंड हुआ। सब ये लोग पूरा वो लोग का क्या क्या वो दिन कैसा होना, कैसा रहना, वो कब ये क्वेश्चन स्टार्ट होना, कब एंड होना, कौन सा एरिया में प्रॉब्लम आता, वो प्रॉब्लम आया तो इम्यूनिटी कैसा करना, पूरा डिस्कस करें। वो लोग भी थोड़ा प्रॉब्लम्स बोले, वो भी म्यूनसिपालिटी वाला से टाइप होके वो भी पूरा प्रॉब्लम्स रेक्टिफाई करते पूरा। ये 9th डे मॉर्निंग 10 o'clock स्टार्ट होता, नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक ये पूरा क्वेश्चन होता। मेरा रिक्वेस्ट है पूरा पब्लिक को, हर एक एरिया में इम्यूनिटी थोड़ा जल्दी निकालना, वो एरिया में थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करो, मेन रोड में ऊपर आने के बाद इमीडिएटली जाना। सम पीपल क्या करते हैं, मैं मस्जिद के पास आने के बाद उधर ही मैं नाचता हूँ, उधर ही रहते बोल के थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं। इमीडिएटली ऐसा है तो पुलिस वाला आके वो एक्शन लेते हैं। ऐसा नहीं, पूरा रूटीन में जाना। एक ही प्लेस में मैं ऐसा डांस करते, एक ही प्लेस में रहते बोले तो एलो नहीं करते। रूटीन में जैसा रोड के ऊपर जाते हैं ऐसा रूटीन में भी किधर भी जाना। पूरा ये बड़े आदमी पूरा नहीं तो 2 तरफ से पूरा कैश टेंडर्स भी एग्री करे, पुलिस डिपार्टमेंट हर तरफ से थोड़ा बंदोबस्त करके पीसफुल करने का हम कोशिश करें। नेशनल एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम फाउंडेशन हैदराबाद की जानिब से मीनार गार्डन में एक तकरीब मुनक़्क़द करते हुए एसएससी टॉपर्स को अवार्ड से नवाजा गया। जुमला 8 स्कूल्स की 8 तलबा और तालिबात को अवार्ड्स दिए गए, जिनमें हुदा हाई स्कूल की होनहार तालिबा
जुनैरा फातिमा को भी SSC में बेहतरीन निशानात हासिल करने पर गोल्ड मेडल से नवाजा गया। इस तकरीब में मुनव्वर जमा मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक थे। तकरीब से खिताब करते हुए शुरा ने कहा कि मुस्लिम कौम को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना और इस रास्ते में उनकी हौसला अफजाई करना वक्त की ज़रूरत है। निर्मल शहर के मोहल्ला बुधवार पेट की मस्जिद कमेटी को लेकर मुकामी मुसलमानों में शदीद गुस्सा और नाराजगी पाई जा रही है। इस बिना पर मोहल्ले के नौजवानों का एक वक्त ने दफ्तर कलेक्टर निर्मल पहुंचकर एक शिकायतनामा EO निर्मल के हवाले किया, जिसमें कहा गया है कि मस्जिद बुधवार पेट निर्मल की इंतजामी कमेटी की जानिब से जमन जुटी कब्रिस्तान में मुतादिद बार गैर मजाज तामीरात की कोशिश की गई। लोगों का कहना है कि मस्जिद को माहाना लाखों रुपए आमदनी होने के बावजूद इब्तिदा से लेकर अभी तक कमेटी की जानिब से मस्जिद में किसी भी किस्म की तामीरी तरक्की नहीं की गई। उल्टा कमेटी खुद कब्रिस्तानों को कॉम्प्लेक्सों में तब्दील करने के लिए कोशां है। नौजवानों की कोशिश है कि एक नई इंतजामी कमेटी कायम की जाए जो मस्जिद के कामों को मुनासिब ढंग से अंजाम दे सके। आज नौजवान महिला उधारपेट से नौजवान तफरीक के साथ हम लोग कलेक्टर ऑफिस पहुँचे हैं। हमारा मुतालिबा ये है कि हमारे कई साल गुजर गए और कमेटी जो है उधारपेट की हमें मुतमईन बख्श जवाब नहीं दे रही और नौजवान बच्चों का साथ नहीं दे रही और जितने भी वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाया गया, जो भी बना गया वो महल्ले के गैर अफराद लोगों को दिया गया और जितने भी नौजवान बच्चों को आप देख रहे हैं वो खाली दूसरों के पास जाके काम कर रहे हैं, फिर रहे हैं। तो हमारा ये मुतालिबा है नौजवान तबके से, नौजवान लोगों से कि नई कमेटी को तश्कील दी जाए और पुरानी कमेटी को बर्खास्त किया जाए। ये मेरा नहीं बल्कि तमाम महल्ले के नौजवानों का मुतालिबा है और मस्जिद के जो मतलब कब्रिस्तान की जो बेहिरमती की गई उसके वास्ते हम लोग ख़दम उठाए सो है और हमारे दादा परदादा की खबरों को जो सो मस्मार किया गया है और उनको तकलीफ़ पहुंचाई गई है। उस तकलीफ़ के बिना पे हम यहाँ पर पहुँच के जो सो कलेक्टर ऑफिस पे एक नोटिस दिए हैं और उससे आप लोगों से मुतालिबा कर रहा है। जैसा कि चंद दिनों से आप हजरात देख रहे हैं निर्मल में महला बुधारपेट की मस्जिद बुधारपेट की कमेटी के हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। जब से जमनजट्टी कब्रिस्तान की दीवार को तोड़कर और वहाँ पर तामीरी सिलसिला शुरू किया गया और ये अब से नहीं कई सालों से हो रहा है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान बेदार हुए हैं और इस सिलसिले में उन्होंने कदम उठाया है। कमेटी मस्जिद बुधारपेट की ये कमेटी कई सालों से मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है और हम बचपन से देख रहे हैं मस्जिद जूँ की तूँ है, तामीरी एतबार से एक पैसे का भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हालांकि हम निर्मल में दीगर मस्जिदों को इस मस्जिद के सामने बनता हुआ देखे, उनमें तामीर नौ हुई, तवसी काम हुआ और मस्जिदें बढ़ाई गई, लेकिन ये मस्जिद जूँ की तूँ है। मस्जिद को कुछ नहीं करके कॉम्प्लेक्सों में इजाफा किया जा रहा है। इससे महल्ले के सारे अफराद के दिलों में तशवीश है। महल्ले के लोग चाहते हैं कि मस्जिद में डेवलप हो। जगतियाल के करीबी देहात इटकियाला में आसमानी बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई है। राजी रेड्डी नामी किसान आज सुबह खेतों में काम करने जा रहा था कि तेज बारिश के साथ बिजली कड़की और फिर बिजली गिरने से किसान मौके पर हलाक हो गया। किसान की इस तरह अचानक मौत से उसके घर वालों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। भारत में मुसलमानों की एक बड़ी तंजीम जमात इस्लामी हिंद ने बिल्किस बानो केस में सदर जमहूरिया हिंद से मदाखिलत की दरख्वास्त की है। जमात इस्लामी हिंद शोबा ख़वातीन की जिम्मेदारान की जानिब से एक ख़त भारतीय सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को लिखा गया, जिसमें उनसे वज़ीर आज़म, गवर्नर गुजरात और दीगर कानूनी माहिरीन की एक हंगामी मीटिंग बुलाकर इस मामले में मदाखिलत करने की दरख्वास्त की है। बिल्किस बानो की इस्मत दरी, उनके अफराद ख़ानदान के कत्ल जैसे संगीन गुनाह के मुजरिम जिनको सजा भी सुनाई गई थी, ऐसे सफ़ाक दरिंदों की माफ़ी और जेल से आज़ादी को लेकर सिवाय कट्टर हिंदू और मुस्लिम दुश्मन अनासिर के सभी इसकी मजम्मत कर रहे हैं। जमात इस्लामी शोबे ख़वातीन ने इस इशू पर बात करते हुए कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से बड़ी बड़ी बातें महज बातें हैं, जबकि हकीकत इसके बरअक्स हैं। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब में आज़मीन की आमद के लिए कोई मखसूस एयरपोर्ट नहीं है। हुज्जाज मुल्क के किसी भी बैनुल अक़वामी या इलाक़ाई हवाई अड्डे पर दाखिल हो सकते और रवाना हो सकते हैं।
वजारत ने कहा कि मुमलिकत में उम्रा वीज़े पर ज़ायरीन के क़याम की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 90 दिन है और वह मक्का, मदीना और दीगर तमाम सऊदी शहरों के दरमियान नक़ल व हरकत के लिए आज़ाद हैं। वजारत के मुताबिक आज़िमीन उम्रा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ज़रिए वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। उम्रा के दौरे की इजाज़त एतमन्ना ऐप पर होनी चाहिए ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हाजी कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं है या उसने किसी मुतासिरा शख्स से रब्ता किया है। अमेरिकी रियासत मिसिसिपी में एक छोटे तैयारे ने कुछ देर के लिए सनसनी फैला दी। वॉलमार्ट बिल्डिंग से तैयारे को टकराकर उड़ा देने की पायलट की धमकी से मुकामी हुक्काम के पसीने छूट गए थे। तकरीबन 3 घंटों बाद ये मसला हल हुआ और पुलिस ने पायलट को हिरासत में ले लिया। BNO न्यूज़ की तरफ से शेयर की गई एक वीडियो में दिखाया गया है कि एक तैयारा कम ऊंचाई पर सर के ऊपर चक्कर लगा रहा है। पुलिस के मुताबिक तैयारा सुबह 5 बजे के करीब चक्कर लगाना शुरू हुआ और 3 घंटे से ज़्यादा गुजरने के बाद भी फिजा में ही था। पुलिस ने बताया कि पायलट ने एक इमरजेंसी नंबर पर ऑपरेटर से रब्ता किया था और वो वेस्ट मैन पर वॉलमार्ट को जानबूझकर टकराने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने बताया कि सूरत हाल को देखते हुए वॉलमार्ट समेत आसपास के स्टोर्स खाली करवा दिए गए थे। हुक्काम के मुताबिक तैयारा, जिसे बाद में बीच क्राफ्ट किंग एयर के नाम से शिनाख्त किया गया, मुमकिन तौर पर चोरी हो गया था। इस मामले पर ब्रीफिंग देने वाले 2 अफराद ने AP को बताया है कि इसकी तफ्तीश मुतादिद विफाकी एजेंसियां कर रही हैं, जिसमें सारे हक़ाइक़ सामने आएंगे। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। 17 सितंबर को यौम-ए-क़ौमी इत्तेहाद के दिन के तौर पर मनाने तेलंगाना काबीना का फैसला। 6 रोज़ा जश्न तक़रीबात का भी हुआ ऐलान। रियासती गवर्नर तमिलिसाई का अचानक निम्स अस्पताल का दौरा। फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन की मुतासिरा ख़वातीन से की मुलाकात। बिल्कीस बानो को इंसाफ दिलाने सदर जमहूरिया की मदाखिलत ज़रूरी। जमात इस्लामी हिंद शोबे ख़वातीन ने लिखा मरमू को ख़त। और ज़ायरीन उम्रा सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट से आ जा सकते हैं। पूरे मुल्क में आज़ादाना नक़ल व हरकत की भी इजाज़त शामिल। वज़ारत हज व उम्रा का बयान। BBN न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।